ये गुड़िया जो है, इनका नाम है आलिया। आलिया नीलम की बेटी है और आलिया भी नीलम के दिल से पैदा हुई है, पेट से नहीं। So you say hello and are you happy to be here? Yeah, I'm very happy to be here. नीलम, मैं जानती हूँ और शायद अब हमारी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि सुश बहुत ही पहले से बहुत ही स्पिरिचुअल रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है इसकी। तो क्या यही इंस्टिंक्ट जी उस समय भी काम दे गई जब आपको सडनली आउट ऑफ द ब्लू मिस इंडिया में पार्टिसिपेट होने का मौका मिला? That is more than instinct. That I have to give credit to my mama. ये मेरी मम्मा की वजह से मैं मिस इंडिया के लिए गई। पर आपने नियरली मना कर दी थी। बिल्कुल। फिर आप वापस कैसे गई? मैंने अपना नाम इसलिए हटा लिया था बिकॉज उस साल ऐश्वर्या राय पार्टिसिपेट कर रहे थे और मैं खुद वो पेप्सी का संजना वाला एड देख के सोचती थी ये जा रही है मिस इंडिया के लिए। नहीं, इस साल तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए बिकॉज दिस विल नेवर हैपन, शी इज टू ब्यूटिफुल। तो मैं रो धो के वापस आ गई मम्मा के पास। मैं नहीं जा रही। आपको पता है 25 लड़कियों ने अपने नाम हटा लिए लिस्ट से। मैं नहीं जा रही सर, अगले साल ट्राई करेंगे। तो मम्मा ने मेरे को डाइनिंग टेबल पे बिठाया और कहा आपको अंधों में काना राजा बनने का शौक है तो बन जाओ, जाओ अगले साल जाओ, उसके बाद जाओ, लेकिन जिसे आप सोचते हो बहुत सुंदर है उसे हरा के आओ तो बात है, नहीं तो क्या फायदा। अरे वहाँ भूल जाओ, हराना वराना तो होगा नहीं, बट इफ यू वांट एंड व्हाटएवर। एंड शी सेड देयर इज समथिंग इन लाइफ कॉल्ड एज एन अपसेट, बट यू विल नेवर नो अनलेस यू ट्राई, unless you get up and you say मुझे कोशिश तो करनी है, बाद में देखेंगे। And it is that mother of mine जिन्होंने मुझे सुबह दोबारा वापस भेजा टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस और मैंने जाके अपना नाम भर्ती किया और उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। And yes, she changed my life with an upset. चलिए तो let's call upon stage this mother of mine and let's hear उनसे आगे स्टोरी पूछते हैं। तो please everybody put your hands together for Mrs. Sen. Looking beautiful. खूब सुंदर लगता है। My mom. आंटी वेलकम टू द शो। क्या एक्चुअल हुआ था आप दोनों के बीच में, जरा आप उस पर रोशनी डालिए। It was like, you know, it was 12 o'clock in the night. I remember it was midnight. हाँ जी। And I was to take a 5 o'clock morning flight to Goa, हाँ जी। connecting from. And I suddenly get a phone call, and I hear my daughter say, "Ma, I don't want you to come. I don't want you to come." I said, "What happened, beta? I don't want to lose in front of you." I said, "What happened? Why? What happened?" And before she could say anything, there were at least 5 or 6 girls, one after the other, on the phone, you know, saying, "Auntie, please let her, because she's our only." Imagine all of them are contestants, you know, wow. telling me, "You have to make her do this because we are looking up to her. She's our only hope." Can you believe that they're contestants? That's what, right, you know, really made me. I'm still get goosebumps, you know. Yeah. So you know, I said, "What?" He said, "You have to make her come up because she's our only hope." Yeah. And she's saying no to it. I said, "Why?" Because she said, "No, Mama, I think it's already taken care of, you know." I said, "No, nothing doing like that, Ma. You have to understand. If you're my daughter, and if I know you, you put in your best. If you're good, nobody in this world can say no to you. Absolutely Nobody. And if you're not, you should not feel bad. Just come back. You're still my daughter, and you'll be the most beautiful daughter I ever had. So not worry about that." Tissue paper, please. Tissue paper, please. Yes, I'm मम्मा very जब bad भी मेरे बारे में बात करती है, चाहे यहाँ हो या ड्राइंग रूम में हो, हमेशा रोती है. always. So we have to get that. But before she cries a little more, I want to say this. So, जब मैं मिस इंडिया के लिए जा रही थी, तो वहाँ पर बड़े-बड़े डिजाइनर्स के कपड़े होने वाले थे और you have to wear really nice wardrobe और ये वो. अब हमारे पास वो उतना बजट नहीं था, तो मम्मा मेरा शेर बच्चा goes to the petticoat वाला downstairs, घर के नीचे. Absolutely roadside. कर्टन का कपड़ा खरीदा, उन्हें दिया और कहा ये बनाओ मैगजीन में से, और कर्टन से मेरा गाउन बना. सॉक्स खरीदे ब्रांड न्यू, उस पे इलास्टिक डाला, मेरा ग्लव्स बना और मैं मिस इंडिया वो पहनकर जीती हूँ.
चलिए, उस दौरान की जब बातें कर रहे हैं तो आपके एक ऐसे साथी को बुलाते हैं जो आपके साथ उस समय से अभी तक लगातार आपके करियर में कहीं ना कहीं फीचर करती हैं, एंड शी इज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड टू यू एज वेल. एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड प्लीज आप चले आइए. गिव हर अ सरप्राइज व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी. Oh, looking smashing. Thank you for being here. आप इनको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि मैं करूं? क्योंकि मेरे पास भी बहुत प्यारे शब्द हैं इनके लिए. अरे आपके पास भी है. नहीं, मैं एक छोटा सा कर दूं पहले भी. जी हाँ, बहुत बिल्कुल. जरूरी है. So, जब मैं मिस इंडिया जीत चुकी थी, मिस इंडिया के बाद मिस यूनिवर्स के लिए जाने लगी, हालत तो तभी भी मिडिल क्लास थी, तो उसके लिए पैसे नहीं थे कि वापस कपड़े खरीदो और मिस यूनिवर्स के लिए जाओ. तो मैंने इनसे कहा था, क्योंकि मैं इनके शोज में चलती थी उस वक्त एज अ मॉडल, तो बॉम्बे में आके मैंने इनसे कहा मेरे पास कपड़े नहीं हैं और मुझे 1 महीने के लिए जाना है, और हम लोगों ने थोड़े बहुत ऑर्गेनाइज कर लिए स्टेज के लिए, बट वो जो 1 महीना रहना है उसके लिए क्या करें. तो शी सेज, लुबना वाज ऑलवेज लाइक, डर लगता था उनसे बात करते हुए, नॉट करेक्ट पोस्चर, स्टैंड स्ट्रेट, ऐसे करके बहुत डांट पड़ती थी हमेशा. सो मैं बहुत डर डर के बोला था. एंड शी सेज, यू कम टू माई हाउस इन द इवनिंग, नाउ गो बैक टू रिहर्सल. ऐसे करके डांट के भेज दिया. फिर मैं शाम को इनके घर गई, और इसे कहते हैं बड़ा दिल वाला इंसान. जाके 3 कबर्ड्स ऐसे खोले उन्होंने. एक बार नहीं कहा कि ये वाला नहीं ले सकते, वो वाला नहीं ले सकते. तीनों कबर्ड खोल के कहा, जो जो फिट आता है इसमें से लेके जाओ, पैक करो, ड्राई क्लीन करके वापस लाना. और इनके कपड़े मैंने मिस यूनिवर्स में पहने थे, और इतना बड़ा दिल है इनका कि जब मैं वापस आई और ड्राई क्लीनिंग कपड़े, कहती हैं पागल हो, मिस यूनिवर्स के कपड़े रख लो. So that's Lubna Adams, ladies and gentlemen. तो लुबना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब ये वापस आई, शी वॉज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, कितना मुश्किल हो गया था इनके लिए पॉलिटिक्स और प्रेशर को फेस करना? एक्चुअली इनके पॉलिटिक्स मिस यूनिवर्स के पहले शुरू हुए थे. क्योंकि जब वो मिस इंडिया जीत गई थी, हाँ जी, तो ऑलरेडी बहुत ही फ्रिक्शन था इंडस्ट्री में, क्योंकि कैसे? लोग सोचते थे कि ऐश्वर्या जीतेगी. जी हाँ. लेकिन ये दिल्ली से लड़की आई थी और क्राउन लेके चली गई. दूसरी कंट्रोवर्सी थी कि इसका एज, शी इज टू यंग टू बी अ मिस यूनिवर्स. 18 साल की थी तब. तो उसका भी एक कंट्रोवर्सी निकला था. एक तो मिस इंडिया के टाइम पे बेट्स लग रहे थे कि ऐश जीतने वाली है. तो यू नो, इतने जो अवेयरनेस था कि एक ऐश है और ये लड़की कहाँ से आई और टाइटल लेके चली गई. जी हाँ. उसके बाद ही फ्रिक्शन शुरू हुआ है, क्योंकि जब भी हमारे शोज होते थे तो हम देखते थे कि गैंग्स बनते थे. और ये एक गैंग था जो ऐश को सपोर्ट करता था. जी हाँ. और एक सुष्मिता थी जो एक अकेले कोने में जाके बैठती थी. Yeah, very true. हमेशा. You know what I want to say, that if there is your destiny written, what can struggle do? Exactly. Struggle can't do anything when your destiny is written for you. And I think auntie, destiny was written right from school. क्योंकि आपने चुप करके बिना किसी को बताए हुए स्कूल के वक्त आपके फ्रेंड्स ने आपको फाइनेंस किया था और आपने एक पोर्टफोलियो शूट किया था अपने आप. तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इनके पापा और मम्मा को ऑफिस में बुलाया था. मैं शायद अब आगे नहीं बोलूंगी, क्यों ना ये स्टोरी हम आपके पापा के लफ्जों से ही सुन ले. So everybody put your hands together and welcome Mr. Shabir Sen. Oh, Papi Danu, come daddy. That was supposed to be a surprise. What a surprise. वो surprise है आपके. अरे बाप रे. Hi. अंकल, क्या हुआ था उस समय? I was totally unaware of this. हाँ जी. You know, the moment it came to me, I said, "What is this portfolio? What does it mean?" तो आपको मालूम था इन दोनों की साजिश है? maybe. So I was थोड़ा पता था, लेकिन पूरा नहीं पता था. नहीं, मेरे को, you know, I had little knowledge, some sketchy knowledge that something is happening. हाँ जी. But what it is, finally, I don't know. So finally, when I got that portfolio and I was told that well, this is for this purpose. Then I said, willy-nilly, I said, okay, you carry on and I will see, I'll follow you wherever you go initially. या इन्होंने ऐसा किया. जब हमने मॉडलिंग शुरू किया, जब चोरी पकड़ी गई और फिर पापा का परमिशन मिल गया,
तो इस कंडीशन पे मिला कि आप जिस भी शूट पे जाओगे पापा साथ जाएंगे। अंकल, आपको कैसे लगता है जब आप सुष्मिता को टीवी पर देखते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं? अरे बहुत अच्छा लगता है। हमारी उम्र में ये बिटिया हमारी जब छोटी थी, जी हाँ। तो इसने आकर, हम तो फौजी हैं भाई, हाँ जी। तो हमारे पास में जब ये आई तो कहा कि दादू हम गाड़ी चलाना सीखेंगे।